مثال کی کتاب نکالیں جو کہ زبور کی کتاب کے فوراً بعد آتی ہے. مثال اس کا 6واں باب اس کی 16ویں 17ویں 18ویں اور 19ویں آیت تک ہم اس کو تلاوت کریں گے. یہ سبھی نے نکال لیا؟ مثال کی کتاب جو بزرگ سلیمان کی معرفت لکھی ہے اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے 19ویں آیت تک ہم اس کو تلاوت کریں گے. تو 16ویں آیت کو میں پڑھتا ہوں. تو لکھا ہے 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ نہیں گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. 19ویں آیت کو سبھی مل کر دوبارہ پڑھیں. جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. خداوند خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا اور سنائے جنم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر کرو. سبھی کہیں آمین. آمین. آئیے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے. یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. گناہوں کی جڑ. یوں تو انسان پیدائش ہی سے اپنی ماں کے پیٹ ہی سے گنہگار ہے اور اس کے گنہگار ہونے کا پتہ کہاں سے چلتا ہے، کب چلتا ہے؟ ہماری باتوں سے اور ہمارے کاموں سے. اور جو نفرت انگیز کراہیت کے لائق باتیں ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ خدا کو جن 6 چیزوں بلکہ 7 ہیں جن سے خداوند کو کراہیت ہے، سخت نفرت ہے. ذرا غور سے سنیے گا. پہلی بات اونچی آنکھیں. اونچی آنکھیں. خدا کو جن 7 چیزوں سے سخت نفرت ہے ان میں پہلی چیز کون سی ہے؟ اونچی آنکھیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم کسی کی طرف گھور کر دیکھیں یا آنکھ اٹھا کر دیکھیں تو اسے اونچی آنکھیں کہا گیا ہے؟ نہیں. اونچی آنکھوں سے مراد ہمارا غرور ہے، ہمارا گھمنڈ ہے، ہمارا تکبر ہے. اور اس آیت کے مطابق، اس حوالہ کے مطابق اونچی آنکھیں وہ ہیں جو گھمنڈ کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں. ان کی آنکھیں ماتھے پر آ جاتی ہیں اور انہیں کہا گیا ہے کہ اونچی آنکھیں. پہلی بات 6-7 باتوں میں سے جو پہلی بات خدا نفرت انگیز قسم سے ان باتوں کے بارے میں بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اونچی آنکھیں. یہ برائی کی جڑ ہے، یہ ہمارے گناہ کی جڑ ہے. جب ہم گمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں کسی بھی طرح سے، تو یہ پہلی بات ہے. اور اسی سے تعلق رکھتی ہوئی دوسری بات کیا لکھا ہے؟ نو جھوٹی زبان. کیا ہے؟ جھوٹی زبان. لیکن ہم ان 7 چیزوں میں سے صرف ایک ہی چیز پر جس کو خداوند سے نفرت ہے، 7 چیزوں میں سے ایک چیز کے بارے میں سیکھیں گے کہ خدا کو نفرت ہے. خداوند نے چاہا تو باقی بھی 6 چیزوں کے بارے میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکھتے رہیں گے، لیکن مین جو ہے وہ ایک ہی بات کے بارے میں سیکھیں گے، جھوٹی زبان. کس کے بارے میں سیکھیں گے؟ جھوٹی زبان، فریب دینے والی زبان.
ریا کرنے والی زبان. جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کو فریب دیتے ہیں. جھوٹ بولنے سے مراد دوسروں کو فریب دینا. دراصل ہم دوسروں کو فریب یا دھوکہ نہیں دیتے, ہم خود کو فریب اور دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کس سے؟ اپنی زبان سے, جھوٹی زبان سے. جب کسی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ہمارے دل و دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو فریب دے رہے ہیں, دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے بائبل مقدس کے مطابق ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں جب ہم کسی سے جھوٹ بولتے ہیں. اور خدا کو اس سے سخت نفرت ہے, کراہیت ہے. خدا کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ جب ہم کسی سے جھوٹ بولیں, ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں, خدا سے جھوٹ بولیں, آدمیوں سے جھوٹ بولیں. یعنی کہ جو ہماری زبان پر جھوٹ آتا ہے تو پھر خدا کو اس سے کراہیت ہے, سخت نفرت ہے. کیوں؟ جب ہم اس کی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا جھوٹ کس نے بولا تھا؟ کس نے؟ ہاں جی, کس نے بولا تھا؟ ہاں جی, سانپ نے. یعنی کہ ابلیس نے سب سے پہلا جھوٹ ابلیس نے بولا تھا. اور پھر یوحنا 8 باب کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے اسرائیلیوں کے بارے میں ان کے منہ پر میں کہہ بھی دیا کہ تم ابراہم کی اولاد نہیں, تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی آج بھی جھوٹ بولتا ہے وہ خدا سے نہیں, وہ کس سے ہے؟ کس سے؟ ابلیس سے. اور جھوٹ بولنے والا کبھی بھی خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جھوٹ بولے, اپنی زبان کو جھوٹ کے لیے استعمال کرے اور کہے کہ میں خدا کا ہوں. وہ خدا کا نہیں, وہ کس کا ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا. اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو کیا وہ خدا سے ہے؟ ہرگز نہیں. وہ خدا سے ہرگز نہیں ہو سکتا, کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. اور وہ شروع ہی سے کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. شروع سے کیا کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم بھی جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, فریب دے رہے ہیں, فریب کھا رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, دھوکہ کھا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا سے نہیں, ہم بول نہیں رہے. اگر جھوٹ بولتے ہیں تو ہم خدا سے نہیں, کس سے ہیں؟ کیونکہ ابلیس نے ہی پہلا جھوٹ ہماری والدہ سے بولا. اور ہماری والدہ کون تھی؟ حوا. جھوٹ بولا, اور وہ خونی بھی ہے, جھوٹا بھی ہے اور خونی بھی ہے. یعنی کہ ہماری زبان کا تعلق خون سے بھی ہے, قتل سے بھی ہے. کیا کہتے ہیں کہ جو ہتھیار ہوتا ہے نا, کلہاڑی, تلوار وغیرہ, اس کا زخم تو ایک دن مٹ جاتا ہے, لیکن زبان کا زخم ایسے ہی ہم کہتے ہیں نا کہ کواڑی دا پھٹ تے مٹ جاتا ہے پر زبان دا پھٹ نہیں, کبھی نہیں مٹتا. کیوں؟ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم دوسرے کے دل پر گہری ضرر لگاتے ہیں, گہری چوٹ لگاتے ہیں, اور اس چوٹ سے اگلے کا دل جو ہے وہ ریزہ ریزہ جاتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا, بس جھوٹ بولا ہے. لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جن 7 چیزوں سے خدا کو کراہیت ہے, خدا کو سخت نفرت ہے, ان 7 چیزوں میں سے دوسری چیز یا دوسری بات کیا ہے؟ جھوٹی زبان. جھوٹی کیا ہے؟ زبان. اور یہ فریب دیتی, فریب کھاتی, دھوکہ دیتی, دھوکہ لیتی, اور پھر یہ ریاکار بھی ہے. یہ زبان ریاکار بھی ہے. ہماری زبان ہی سے ریاکاری کے الفاظ
निकलते हैं, वो भी झूठ में आते हैं। वो भी क्यों झूठ में आते हैं? रियाकारी भी क्यों झूठ के समय में आती है? क्यों आती है? क्योंकि हम खुदा के लिए या किसी दूसरे इंसान के लिए इतना सा काम करें तो हम बताते कितना है, बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। फिर हम चींची का पहाड़ बना देते हैं कि देखिए हमने खुदा के लिए ये किया, हालांकि हमने उतना किया नहीं होता। हमने अपने भाई के लिए ये किया, हालांकि हमने उतना किया नहीं होता। हमने अपनी बहन के लिए ऐसा किया, मैंने अपनी बीवी के लिए ऐसा किया, मैंने अपने शौहर के लिए ऐसा किया, मैंने अपने रिश्तेदारों के लिए ऐसा किया, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। लेकिन उस बात को बड़ा चढ़ाकर जो है वो बयान करते हैं, और ये है रियाकारी। ये क्या है? उतना करना ना जितना बयान कर देना, जितना बता देना। और झूठ के मीनिंग्स में से ये भी आता है, रियाकारी भी आती है। हम उतना करते नहीं जितना दिखावा करते हैं, उतना करते नहीं हम जितना बता देते हैं, जितना बयान कर देते हैं, जितना शेयर कर देते हैं। और इन बातों से खुदा को क्या है? कितनी नफरत है खुदा को? थोड़ी सी। झूठ से खुदा को सिर्फ कितनी सी नफरत है? सुनिए, अगर गुनाह की इब्तिदा होगी तो वो झूठ से होगी। वो क्योंकि इब्लीस ने सबसे पहले बुजुर्गा अम्मा हवा से सच नहीं झूठ बोला था, और गुनाह की इब्तिदा जो है वो झूठ पर मबनी है। और जब मैं और आप भी झूठ बोलते हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि हम खुदा से नहीं, हम खुदा से नहीं। यीशु मसीह ने यूहन्ना 8वें बाब के अंदर इसलिए कहा कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो, क्योंकि वो शुरू ही से झूठा है। और हम भी क्या हैं? हम क्या हैं? झूठे। बाइबल मुकद्दस में जब हम दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर एक जबरदस्त झूठे के बारे में लिखा है, खतरनाक झूठे के बारे में लिखा है। अगर हम झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं और झूठ से किनारा नहीं करते, झूठ को तर्क नहीं करते, झूठ को नहीं छोड़ते, फिर उसकी सजा क्या होती है? उसकी सजा ये होती है, जब आप दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब पढ़ें तो वहां पर एक जबरदस्त हिस्ट्री लिखी हुई है, तारीख लिखी हुई है। वहां पर बाइबल मुकद्दस के अंदर उस जिहाजी की बात लिखी हुई है जो मर्द खुदा अलीशा नबी का खादम था तो वो खादम था वो खिदमत के अंदर, लेकिन बोल क्या रहा है? सुनिएगा, कहलवाता क्या है? खादिम। अलीशा नबी, अलीशा मर्द खुदा जो एलिया का शागिर्द था, और एलिया के बाद उसने बहुत खिदमत की, उसने बहुत से मौजूद किए। उसका शागिर्द जो है वो जहाजी था, और उसने क्या बोला? झूठ। कहलवाता क्या है? सुनिएगा, कहलवाता क्या था? खादिम। बाइबल मुकद्दस को भी पढ़े तो वहां पर लिखा है अलीशा का खादिम। अलीशा का खादिम जो अलीशा को अपना आका, अपना उस्ताद मानता था। अलीशा तो ऐसा नहीं था, लेकिन उसका शागिर्द ऐसा निकला और उसने झूठ बोला। उसने और झूठ क्या बोला? झूठ क्या बोला? पहली बात, उसने नुमान कोड़ी से झूठ बोला, और नुमान का कोड़ी से जो झूठ बोला वो क्या झूठ था? कि अभी अभी मेरे आका, मेरे उस्ताद अलीशा मर्द खुदा के यहाँ 2 ऐसे शख्स आए हैं जिनको कपड़ों की जरूरत है, जिनको तेरे तोहफे की जरूरत है, जिनको तेरे गिफ्ट की जरूरत है। और 2 शख्स हमारे पास आए हैं। जो ही तो निकला और तेरे आने के बाद 2 शख्स आए जिनको कपड़ों की जरूरत, जिनको गिफ्ट की जरूरत है, और हम उन्हें देना चाहते हैं। हम उन्हें देना चाहते हैं। तो क्या ये सच था या झूठ था? जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, इस कहानी को जानते हैं, वो बताएं कि ये सच था या झूठ था? वो खादिम होकर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? सख्त झूठ बोल रहा है, सख्त झूठ बोल रहा है। और फिर क्या होता है? उससे भी झूठ बोलता है। फिर जब वो गिफ्ट लेकर, तोहफा लेकर वापस आता है, फिर अपने उस्ताद, अपने आका मर्द खुदा अलीशा के सामने खड़ा होता है। तो अलीशा को खुदा बता दिया करता था कि खुदा अपने बंदों के साथ हम कलाम होता है, और अलीशा को खुदा ने सारा वाक्या बता दिया था, और अलीशा ने देख भी लिया था अपनी रूहानी आंखों से। और जब वो
غازی واپس آتا ہے تو علیشہ سے پوچھتا ہے ہاں میں بتا کہاں تھا، بتا تو، اور اس کے ساتھ بھی وہ جھوٹ بولتا ہے بس میں یہی تھا، میں کہیں نہیں تھا، میں یہی تھا، بس یہی تیرے پاس تھا، کہیں نہیں گیا۔ کیا وہ کہیں نہیں گیا تھا؟ وہ میلوں دور نمان کوڑی کے پیچھے گیا تھا جھوٹ بولنے کے لیے، اور پھر وہاں سے جھوٹ بول کر جو تحائف لے کر آیا تھا نمان کوڑی سے وہ اپنے گھر میں رکھے اور علیشہ کے سامنے کھڑا ہوا، اور جب علیشہ نے پوچھا تو دوبارہ اس نے جھوٹ بولا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ جھوٹ نہ بولتا تو خدا سے معاف کر دیتا، لیکن وہ جھوٹ 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 پر جھوٹ بولے جاتا تھا۔ اب علیشہ نے کہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے اچھا دیکھ تجھے سزا ملے گی، تو نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تو نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تجھے سزا ملے گی۔ اور اس کی سزا بلا کیا ہوگی؟ اس کے ساتھ اس کے گھرانے کو بھی کوڑ پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ تو کیا اس نے کیا تھا؟ سبھی بولے نا، آج کا موضوع جھوٹ ہے، سبھی بولے اس نے کیا تھا؟ ابھی سبھی نہیں بول رہے، ابھی نہیں سبھی، اس نے کیا تھا؟ سب نہیں لگتے بھی، صرف اس نے تھوڑا سا کام کیا، جھوٹ بولا تھا، جھوٹ، صرف جھوٹ بولا تھا، اور جھوٹ کی سزا کیا ملی؟ سارے خاندان کو اس سمیت کیا پڑ گیا؟ تو تھا کون؟ اس کا کریکٹر کیا تھا؟ وہ کرتا کیا تھا؟ خاتم علیشہ کے ساتھ ساتھ ہر وقت رہتا تھا، ہر وقت علیشہ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، بڑی اس کی تابعداری کرتا تھا، لیکن اینڈ پر اس نے جھوٹ بول کر ساری خدمت کا بیڑا خود تو سزا پائی، لیکن اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کو بھی لے ڈوبا۔ خاتم آج بھی بہت سے خدام جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اتنا سا کام کرے یا نہ کرے باہر رپورٹ اتنی سی بھیج دیتے ہیں۔ سنیے گا، اتنا کرتے نہیں جتنی رپورٹ بھیج دیتے ہیں، کریں گے شاید کچھ نہ، لیکن رپورٹ کتنی بھیج دیتے ہیں بڑی، کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے۔ پروگرام کسی کا آتا ہے اور رپورٹیں بنانے والے کئی ہوتے ہیں۔ کیا یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ کچھ نہیں کرتے، بے شک کچھ نہیں کرتے۔ ایسا کرنا چھوڑ دے، جھوٹی رپورٹیں بنانا چھوڑ دیں۔ کسی کے بچوں کو لے کر واٹس ایپ پر کسی کے بچوں کی تصویریں لے کر، پتہ نہیں ان بچوں کو ہم جانتے نہیں ہوتے، ان کی تصویریں لے کر ان لوگوں کو ہم جانتے نہیں ہوتے جن کی تصویریں لے کر ہم فیس بک پر چاڑ دیتے ہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ تو خدا پھر اس کو سزا دے گا یا نہیں دے گا؟ بتائیے گا۔ پھر بلڈ پریشر کم اور اوپر نیچے ہوگا نہیں ہوگا؟ شوگر بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بچے بیمار ہوں گے یا نہ ہوں گے؟ ہم تکلیف میں پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے؟ پلیز جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، جو اپنی حقیقی رپورٹ ہے وہ دیا۔ جتنا آپ تھوڑا کام کرتے ہیں زیادہ رپورٹ ہمیں دینے کن کو ہے، دینے کن کو ہے؟ ہمیں کسی کو رپورٹ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا رپورٹ لینے والا اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں جا سکتے، اگر شو ہونا چاہتے ہیں، آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ کو جو آپ کے پاس حقیقت میں ہے وہی فیس بک پر دیا کریں، وہی دوسروں کو شیئر کیا کریں۔ میری رپورٹ، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ میری رپورٹ دیں، میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں آپ کی رپورٹ دوں۔ جس جگہ کو، جن لوگوں کو، جن بچوں کو میں جانتا یا جانتی نہیں ہوں، ان کی تصویریں وہیں سے لے کر یہی پر جو ہے وہ ختم کر دینا، یہ جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور وہ بھی خاتم تھا، جہازی بھی کیا تھا؟ اس کے بارے میں خاتم ہی لکھا ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ عام چیزیں ہیں، عام چیزیں۔ یاد رکھیے، اگر ایسا کریں گے تو جہازی کی طرح خود تو ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے ساتھ تمہیں بھی دے ڈوبیں گے ظلم۔ ایسا نہ کریں، اپنی سزا اپنے خاندان کو نہ دے۔ پلیز جھوٹ، کسی بات میں جھوٹ نہ بولیں، کسی بات میں دھوکہ فریب نہ کھائیں اور نہ دیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو فریب دے رہے ہیں۔ میں متعدد بار کہہ چکا ہوں، خدا کے مذبح پر کھڑا ہوں، میرا کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی لنک نہیں، کوئی لنک نہیں۔
یہ ایک شوقیہ طور پہ جو ہے یہ ویڈیوز بن رہی ہے تاکہ یہ کلام جو ہے وہ جہاں تک پہنچے اور لوگ سنیں اور نجات پائے. ہاللیلویا. ہمیشہ کی زندگی پائے. میرا صرف یہی تک ہے, نہ میرا کسی گورے سے تعلق ہے اور نہ کسی کالے سے تعلق ہے. میرا تعلق صرف بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا سے ہے. ہاللیلویا. میری فوٹو میں دیکھ رہا ہے, میری فوٹو میں چھو رہا ہے, اور جو خادم ایسا کرتے ہیں مہربانی کر کے ایسا کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ خداوند کو 7 چیزوں سے نفرت ہے اور ان میں دوسری چیز جھوٹ ہے. کیا ہے بھائی؟ جھوٹ ہے. جھوٹ ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. جو آپ کے پاس ہے یسوع مسیح کے آنے تک اسے تھامے رہے. ہمیں جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی کا حساب دینا ہے, دوسروں کا نہیں. دوسروں کا نہیں. ہم بڑے سے بڑے خادم ہیں تو پھر ہمیں بڑا حساب دینا پڑے گا. اگر ہم چھوٹے خادم ہیں دنیا کی نظروں میں تو ہمیں پھر اپنی خدمت کے حساب سے تھوڑا حساب دینا پڑے گا. اگر ہم دوسروں کی رپورٹوں کو لیں گے, دوسروں کے بچوں کو, دوسروں کو لوگوں کو لے کر فیس بک پر چڑھائیں گے, دوسروں کو جو ہے وہ اپنی رپورٹ جھوٹی رپورٹ دیں گے, تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ ان لوگوں کو ضرور بھگتنا پڑے گا. یاد رکھیے گا, ایسا نہ کریں, کیونکہ خداوند کو جھوٹ سے کیا ہے؟ تھوڑی سی نفرت ہے. تھوڑی سی نفرت. کتنی سی نفرت ہے؟ کتنی سی نفرت ہے؟ سخت نفرت ہے. مہربانی کر کے جھوٹا کوئی بھی کام نہ کریں, جھوٹی کوئی بھی بات نہ کر کے. خدا دیکھ رہا ہے. خدا اے بندے اپنے دل میں یہ احساس پیدا کر کہ خدا دیکھ رہا ہے. خدا, اس کی آنکھیں زمین کی انتہا تک جاتی ہیں اور وہ خدا لامحدود ہے. اور ایسا کرنا چھوڑ دے. خدا مجھے اور آپ کو خوب جانتا ہے, اور خدا کو جھوٹ سے کیا ہے؟ نفرت. کیا ہے؟ کتنی سی نفرت ہے؟ تھوڑی سی. کتنی نفرت ہے؟ کتنی نفرت ہے؟ کتنی نفرت ہے؟ بھائی بھائی سے جھوٹ بول رہا ہے, بہنوں سے جھوٹ بول رہی ہے, بہن بھائی ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں, شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, بچے ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں اور ماں باپ ہو رہا ہے نا. خادم کلیسیا سے جھوٹ بول رہے ہیں اور کلیسیا خادم سے. اور ایسے چرچ کبھی ترقی نہیں کر سکتے, ایسے گھرانے کبھی ترقی نہیں کر سکتے, ہرگز نہیں کر سکتے. پہلی جو بات ہے وہ اونچی آنکھیں ہیں, اور انہی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ تعلقات جو تعلق رکھتی ہیں وہ جھوٹی زبان ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹی زبان ہے. اور یاد رکھیے گا, جس چرچ میں, جس گھر میں, جس خادم کی زندگی میں جھوٹ ہے وہ کبھی ترقی, وہ خداوند میں کبھی بڑھ نہیں سکتا. یوں تو وہ ترقی کرے گا وقتی طور پہ, وہ مال و دولت میں بھی بکثرت حاصل کرتا ہے, وہ گھر بار بھی بکثرت بنا سکتا ہے, لیکن وقتی طور پہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. جھوٹ کی کوئی بنیاد, جس طرح جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی, اور جو لوگ جھوٹ پر مبنی سارے کام کرتے ہیں ان کاموں کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. چلو, بہت سے لوگ جھوٹ بول کر اپنے بھائیوں کے, اپنی بہنوں کے اور پھر اپنے بچوں کے رشتے بھی کر لیتے. ایسے یعنی ساڈا منڈا کوئی نشہ نہیں کرتا, یہ تو خالی سگریٹ بھی نہیں پیتا. ایسے ہی ہے نا, ہوتا کہ نہیں ہوتا بتائیے. پہلے میں آپ سے سوال لینا چاہتا ہوں, داخلے لیتے سارے. ہاں جی, جھوٹ بول کر ہم اپنے بچوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, ہم وقتی طور پہ تو اپنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں, رشتہ ہو بھی جاتا ہے, شادی بھی ہو جاتی ہے, کوئی بات نہیں, لیکن بعد میں نے گھروں کے گھر اجڑتے ہوئے دیکھے. خدا معاف کرے. جھوٹ کی کوئی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وہ نہیں, سچ بولیں کہ میری بہن, میرا بھائی, میری بیٹی, میرا بیٹا, یعنی کہ یہ سوکھا سگریٹ نہیں پیتا, اس میں کچھ بھر کے بھی پیتا ہے. ایسا ہی ہے نہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ رشتہ کرنا چاہیں تو ویلکم, نہیں تو ڈونٹ وری, کوئی بات نہیں ہے. لیکن جھوٹ پر مبنی کوئی کام یا کوئی بات نہ کریں. بہت سے لوگ کام کاج کاروبار جھوٹ کے طور پہ کر لیتے ہیں, جھوٹ بول کر اپنا بزنس چلا لیتے ہیں, جھوٹ بول کر کام کرتے ہیں, شروع کر لیتے ہیں. کیا وہ پایا تکمیل تک پہنچ پاتا ہے؟ بتائیے نا. لگتا ہے کلام سچ ہے,
ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌੜਾ ਹੈ, सच लेकिन सच जो है तो कौड़ा लेकिन बाद में मीठा है, बाद में खुदा का कलाम वक्ती तौर पे क्या है, कड़वा। मुकाश किताब में लिखा है जब मैंने मेरे मुंह को टच किया गया खुदा का कलाम वो तुम्हारे, तो मुझे कड़वा लगा, पेट में जाने से कड़वा लगा और बाद में उसका रिजल्ट बहुत मीठा होगा। हालेलुया। जब तक हम खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते उतनी देर तक ये कड़वा लगता है, लेकिन जब खुदा के कलाम को कबूल कर लेते हैं तो ये शहद से भी मीठा बन जाता है। हालेलुया। इसलिए ये कलाम कड़वा है क्योंकि हम सबकी जिंदगी में झूठ चल रहा है, हमारी बातों में झूठ चल रहा है, हमारे कामों में झूठ चल रहा है, हमारे घरों में झूठ चल रहा है, हमारे काम काज में झूठ चल रहा है, हमारे रिश्ते करवाने और करने में झूठ चल रहा है। इसलिए हम बात नहीं कर रहे, लेकिन याद रखिए खुदा का कलाम सच और हकीकत है। जब कोई भी काम आप सच पर मबनी करेंगे तो वो पाया तकमील तक पहुंचेगा। हालेलुया। और वो आपके लिए बरकत का बायस होगा। और जब कोई भी काम, कोई भी बात, कोई भी चीज आप उसकी बुनियाद झूठ पर रखेंगे तो झूठ की कोई बुनियाद है वो किसी वक्त भी उखड़ सकता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि दो तरह के घर बनाने वाले होते हैं। एक घर बनाने वाला वो होता है जो रेत पर अपने घर की नींव रखता है, बुनियाद रखता है, और दूसरा घर बनाने वाला कौन होता है जो चट्टान पर। और घर कौन सा कायम रहता है, कौन सा, कौन सा, चट्टान। चट्टान से मुराद सच है, खुदा का कलाम, और रेत से मुराद झूठ। आज के मौजूद के मुताबिक रेत से मुराद क्या है, और जो भी काम, जो भी बात हम झूठ पर करते हैं वो कभी कामयाब, वो जरा सी आंधी चलती है, जरा सा हवा का झोंका आता है तो वो गिर जाता है। वो क्या होता है, वो आराम से गिर जाता है क्योंकि उसकी बुनियाद रेत पर होती है, उसकी बुनियाद झूठ पर होती है। कोई भी काम, कोई भी बात करने से पहले आप सोच लें कहीं इसकी बुनियाद में झूठ पर तो नहीं रख रहा, झूठ पर तो नहीं रख रहा। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मैं अपने बेटे का रिश्ता कर रही हूँ तो इसकी बुनियाद झूठ पर तो नहीं। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो झूठ पर मबनी तो नहीं, इसकी नींव जो है वो झूठ पर तो नहीं। अगर झूठ पर है तो फिर मत उम्मीद रखें कि ये बात तकमील तक पहुंचेगा, क्योंकि झूठ से खुदावंद को सख्त नफरत है, कराहियत है, कराहियत है, कराहियत है। और फिर आप इमाल की किताब उसका 5वां बाब पढ़े तो वहां पर भी एक झूठों का जोड़ा पकड़ा गया और उनका नाम बोला क्या था, हाँ जी, इमाल 5वें बाब के अंदर भी एक जोड़ा पकड़ा गया और वो भी झूठा था और दोनों मियां बीवी थे। शौहर का नाम बोला क्या था, हननिया, और उसकी बीवी का बड़ा नाम क्या था, सफीरा। और झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, अपनी जायदाद का हिस्सा देने की वजह से झूठ बोल रहे थे। कई दफा हम अपने लेन देन के घरेलू या किसी भी तरीका से किसी रिश्तेदारों के साथ जब हम कोई वादा कर लेते हैं, हमारा लेन देन होता है, तो फिर हम लेने के वक्त कुछ और होते हैं और फिर देने के वक्त कुछ, हमारे चेहरे के तासर बदल जाते हैं। लैंड वाली एक ही होता है जिਵੇਂ पता नहीं ਹੁਣੇ ਹੀ खुदा माफ करे मर चले ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨੇ कभी मरना ही नहीं, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ मार के मरना है। ऐसे ही है ना भाई, उसने कह तो दिया, दोनों ने कह तो दिया कि हम अपनी जायदाद को बेचेंगे और फिर सारा हिस्सा लाकर पतरस रसूल के कदमों में रख देंगे। और जब जायदाद बेची गई, रुपया पैसा आया, तो पैसे को देखकर बड़े बड़ों के होश उड़ जाते हैं, बेईमानी पैदा हो जाती है, करप्शन पैदा हो जाती है। अगर आज हमारे मुल्क के अंदर करप्शन है तो सिर्फ इसी वजह से है, झूठ पर मबनी है। सारी बातें, सारे काम झूठ पर मबनी हो रहे हैं, इसलिए हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। लेकिन आप जरूर सच पर अड़े रहें, सच का दामन कभी ना छोड़े, चाहे हमारी जान जाती है तो। हालेलुया। सच का दामन कभी ना छोड़े। हननिया और सफीरा ने भी ऐसा किया, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने झूठ बोला। और जब रुपया पैसा देने की बारी आई तो
तो फिर हननिया क्या कहता है अपनी बीवी से सफीरा से क्या कहता है कि तू यही बैठ, तू घर में रह, क्योंकि घर में हमारी जायदाद के आधे पैसे पड़े हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम पैसे लेकर दोनों मियां बीवी पतरस रसूल के पास जाएं और पीछे जो हम पैसे रख कर जाएं उनको कोई डकैत पड़ जाए, कोई चोर पड़ जाए, कोई 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 हमारे घर से छीन या लूट कर या चुरा कर ले जाए। इसलिए तू पैसों के पास रह। तू जब हमारे घर में पैसे होते हैं ना तो हम मसायों के घर में भी नहीं जाते, जहाँ कुछ को दुआ ना लगे। इसी तरह ये ना जेड़ा बंदा एडी छेती घरों ने निकला समझो तो घर च पैसे नहीं थे, उहदे घर च तेरा बेचारा बूहे पे बैठा रहा, उन्हें पता ही यार इन्हें कितने जाना गलियां तो फिरता टुरता। और जब भी हमारे घर में पैसे होंगे, क्योंकि बैतुल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया कि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी हाय। पैसे अंदर पए तो साडा दिल बाहर किवें लगेगा दसो? लगेगा क्यों जी दसो? हम चच्ची सियाणदा सी ताले तुले अंदरों बाहरों मार मोड़ के ख्याल साडा बेरो दे रहिंदा। लेकिन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हननिया अपनी बीवी से क्या कहता है? तू घर ही रहो, तू और मैं शेरा झूठ बोलने लगी, मैं तुम्हारा झूठ बोलने लगी, मेरे जिला झूठ। कई लोग तो झूठ बड़े फखर नाल मार देंगे। सुनो आंद्रे भाई, मैं जिला झूठ मारना लोग हाँ जी लोग समझते ने ये जितना सच्चा बंदा ही कोई नहीं। ऐसे ही इस तरह काट के झूठ इना मासूम चेहरा बना के इवें दे तासरात करके इवें दा झूठ मेरे नाल भोला भला बंदा उसने मानदा यार तू सच्चा है, अल्लाह हो गया तो जान ऐसे है ना एक तो। लेकिन उसने भी कहा ओ मैं शेर हां, सदीरा तू घर है, तू घर है, मैं वे पतरस रसूल अगे इंजा जाके झूठ बोलांगे ना ते पतरस रसूल याद रखदा रहेगा, याद ही करेगा। लेकिन कैसा हुआ? क्या उसका झूठ पकड़ा ना? क्या इससे पहले कि हननिया पतरस के पास जाकर झूठ बोले, जिस तरह अलीशा को जहाजी के आने से पहले खुदा ने बता दिया, इसी तरह पाकरू ने हननिया के आने से पहले पतरस रसूल को बता दिया कि ये जो बंदा तेरे पास आ रहा है ये झूठा है, ये और देख मैं इसके साथ करता क्या हूं, मैं इसके साथ है। और जो ये हननिया आया तो आते ही झूठ बोला, आते ही ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਕੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਜ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਹਾਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਜ ਦਾ ਝੂਠ ਇੱਕ कड़ के झूठ कड़ के, और जितना हम झूठ बोलते हैं उतना ज्यादा और ज्यादा झूठों की तादाद बढ़ती जाती है। एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? और सिर्फ 100 नहीं, अब हजारों लाखों की बात करें। 100 का जो है ना वो दौर गुजर चुका है, 100 का दौर गुजर चुका है। अब तो एक 100 रुपए की मेरा ख्याल है किलो चीनी भी मुश्किल आती होगी, ऐसे ही है ना। जब वो वक्त 100 वाला गुजर चुका है, जब इतनी महंगाई है तो फिर इसमें भी महंगाई करें, इसमें भी महंगाई करें। एक झूठ बोलने के लिए हमें लाखों की तादाद में झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए। और इसका हल क्या है? एक भी ना बोले, एक भी ना बोले, न्यू ना रखें, बुनियाद ना झूठ पर रखें। अगर बुनियाद और न्यू जो है आप झूठ पर रखेंगे तो आपको पूरी बिल्डिंग झूठ पर बनानी पड़ेगी, उसका लेंटर भी जो है वो भी झूठ पर डालना पड़ेगा। इसलिए खुदा को झूठ से सख्त नफरत है, झूठ से सख्त। अगर आपका काम होता है ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन झूठ, क्योंकि झूठ की सजा है। और हननिया को क्या सजा मिली? हननिया आया और पतरस ने कहा क्या तुमने पतरस इतने की को जायदाद बेची? हाँ जनाब नहीं बेच को, असी खुदा ने झूठ बोल दिया, असी खुदा ने वादा किया तो देखो असी पूरा करने आ। बड़े जो लोग खुदा नाल वादा करके पूरा नहीं करते, खातमा नाल वादा करके पूरा नहीं करते, चर्च नाल वादा करके पूरा नहीं करते। और उसने खुदा के साथ वादा किया था, उसने चर्च के साथ, इब्तदाई चर्च के साथ, उसने खुदा के खातमों के साथ वादा किया था कि जितने की भी जायदाद बेची जाएगी सारे पैसे लाकर तुम्हारे सामने रख देंगे, खुदा के हुजूर में दे देंगे। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो बड़े बड़े दौलतमंद जो होते हैं वो भी नहीं देते। वो भी हननिया ने भी ऐसा किया। क्या उसने सच बोला या झूठ बोला? और फिर क्या लिखा? उसका रिजल्ट क्या निकला? जहाजी का रिजल्ट क्या निकला? जहाजी का रिजल्ट उसके घराने समेत उसको कोड़ लग गया। और हननिया का रिजल्ट क्या निकला? ये उसी वक्त उसी दम मर गया। लेकिन इसका दम निकल गया, ये मर गया। और जो वहां पर नौजवान खड़े थे उन्होंने उसे
उठाया और उसे दफनाया और फिर दफनाया। और उसकी बीवी क्या कर रही थी घर में? क्या कर रही थी? उसका पैसे छड़ के जावा की करा, एक पासे शोर एक पासे पैसे नहीं मैं की करा। फिर उन्हें 3 घंटे बाद रिजल्ट की कटिया, पैसे तो फिर आज लगे शोर का तो पता करा है। 3 घंटे बाद जदों वो भी पतरस नूं गई तो पतरस ने क्या हाँ सफीरा तुसा इन्ने तो ही, उन्हें क्या हाँ जी इन्ने नहीं बस ठीक है। फिर पतरस ने क्या तुसा क्यों खुदा नाल झूठ बोलने लई एका कीता? क्यों रूल कुदस नाल झूठ बोलने लई क्यों एका कीता? याद रखो, शौहर और बीवी एका जरूर करें लेकिन सच के कामों में। याद रखिएगा, अगर बीवी या शौहर झूठ के मामले में एक दूसरे का साथ देते हैं तो वो दोनों मुजरम हैं, दोनों मारे जाएंगे। और ऐसा ना हो, ऐसा ना होना चाहिए कि आपकी सजा आपके बच्चों को मिले, खुदा ना करे। आपकी सजा आपकी बीवी को मिले, खुदा ना करे। और बीवी की सजा शौहर को मिले, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। जो सच है वो ही बता दे। अगर शौहर झूठ बोल रहा है तो बीवी बता दे नहीं भाई ये झूठ मारता पे भाई। अगर बीवी झूठ बोल रही है तो शौहर को चाहिए कि भाई झूठ बोल दी भाई सच गल वो दस, ताकि दोनों बात है, ताकि वो दोनों आपस में कंप्रोमाइज करें, आपस में समझौता करें, ताकि खुद भी बचे और अपने खानदान को भी लेकिन हमारे खानदान क्यों डूबते जा रहे हैं? हमारे घर घराने क्यों डूबते जा रहे हैं? झूठ की बना पर, सिर्फ और सिर्फ जब हमारी जिंदगियों में, हमारे कामों में, हमारी बातों में झूठ है तो फिर इसकी उम्मीद जो है वो अच्छी मत रखें। याद रखिए क्यों, इसकी वजह क्या है? क्योंकि खुदा को झूठ से कितनी नफरत है? सख्त नफरत है, कराहत है। खुदा झूठ को पसंद नहीं करता, हरगिज़ नहीं करता, हरगिज़ नहीं करता। याकूब का खत उसका 3रा बाब पढ़े, उसकी 6ठी आयत से उसकी 10वीं आयत तक पढ़े तो वहां पर जो जुबान है यहां से झूठ निकलते हैं। और जब जुबान से झूठ निकलते हैं तो वो जुबान क्या करती है? वो जुबान कौन सा गुल खिलाती है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब ये इंसान की जुबान से झूठ निकलता है तो ऐसी जुबान से निकला हुआ झूठ जो है वो आग लगा देता है। क्या कर देता है? आग लगा देता है। और झूठ, जुबान से निकला हुआ झूठ क्या कर देता है? आग लगा देता है। जिंदगियों में आग लगा देता है, घरों में आग लगा देता है, कलीसियाओं में जो कि झूठ बोलते हैं ऐसे लोगों में जो है वो आग लगा देता है। झूठ क्या करता है? आग। जहाजी की जिंदगी में क्या आग न लगी? उसके घराने में आग न लगी? हननिया और सफीरा के घर में जो है वो आग ना लगी? क्या उनको, उन दोनों को सजाएं ना मिली? किसकी बिना पर? सच की बिना पर? झूठ की बिना पर? किसकी बिना पर? इसलिए कि सच जिंदगी है और झूठ मौत है। झूठ क्या है? मौत है। कभी भी किसी बात में, किसी काम में झूठ ना बोले, किसी बात, किसी काम में झूठ ना बोले। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये सारे वाक़यात लिखे हुए हैं कि सच जिंदगी है और झूठ मौत है। सच खुदा को जाहिर करती है और झूठ इब्लीस को जाहिर करता है। खुदा में जिंदगी है और इब्लीस में मौत है। इब्लीस में मौत है। जरा याकूब का खत मेरे साथ निकालें, उसकी 6ठी आयत को कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। याकूब का खत उसका 3रा बाब उसकी 6ठी आयत को पढ़े। जो पहले निकाले वो जरूर पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है, बेटों में से या बेटियों में से। याकूब का खत इब्रानियों के खत के फौरन बाद आने वाला खत जो है वो याकूब का खत ही है। और उसका 3रा बाब और उसकी 6ठी आयत को निकालें। शाबाश बेटा पढ़े, क्या लिखा है? जुबान भी एक आग है। जुबान क्या है? एक आग है। जुबान क्या है? तो क्या जुबान ये बहुत बड़ी है? बताइए कितनी सी जुबान है? छोटी सी जुबान है, चंद इंचियों की जुबान है मेरा ख्याल है। तो फिर ये क्या है? आग। और आग ही से आग लगती है। यानी कि जुबान को जब हम झूठ पर मबनी इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये जुबान आग लगाएगी। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जुबान क्या है? एक आग है। घरों के घर जलाकर रख देती है, जिंदगियों को जलाकर रख देती है। इसलिए जुबान क्या? एक आग है।
एजाम शरारत का हो जुबान हमारे जिस्म के जितने भी हिस्से हैं, जितने भी अज़ा हैं, इन सब में क्या है? ये शरारत का क्या है? शरारत का क्या है? शरारत का आला है। यानी कि ये शरारत का बहुत बड़ा ध्यान है। ये जुबान आँख है। आगे क्या लिखा है? और सारे जिस्म को दाग लगा और सारे जिस्म को क्या लगा देती है? दाग। क्या लगा देती है? दाग। इसका मतलब क्या है? सुनिए जरा गौर से सुनिए, इसका मतलब क्या है? जब मैं आपके साथ एक बार झूठ बोल दूंगा तो क्या आप मुझ पर दोबारा यकीन करेंगे? नहीं। फिर अंदर होने भावे सोने का भी बन के वहा देवे ना, हो नहीं एंड साहब, हो नहीं होने भावे किदा बन के वहा देवे सोने का। अगर एक बार मैं अपना इत्मीनान गवा बैठूंगा झूठ बोलने की वजह से, तो इत्मीनान सारी जिंदगी गिरने वाला है और ये कभी उठने का नहीं। क्योंकि लिखा है कि शरीर जब गिर पड़ता है तो दोबारा उठने का नहीं। अपनी जुबान की वजह से, झूठ की वजह से जब हम एक बार गिर जाते हैं किसी की नजरों से, इत्मीनान के सबब से, तो फिर कोई भी हम पर यकीन या इत्मीनान नहीं करता। आगे बेटा क्या लिखा है? आगे दूसरी आयत को पढ़ के, यानी कि अब वो याकूब 9वीं और 10वीं आयत को पढ़े, बाकी 7वीं 8वीं आयत को छोड़ दें। क्या लिखा है 9वीं और 10वीं आयत के अंदर? इसी से हम खुदावंद और बाप की हो इसी जुबान। सुनिए जुबानें कितनी हैं? जुबानें कितनी हैं? सभी बोलेगा कि सारे नहीं बोलते भाई। जुबानें कितनी हैं? शाबाश। एक बार फिर चेक कर लो, मैं चेक कर रहा हूं। कितनी है दसो? और एक ही जुबान है। कितनी जुबानें हैं? और एक ही जुबान से हम क्या करते हैं? बेटा पढ़े क्या लिखा है? एक ही जुबान से क्या क्या करते हैं? खुदावंद और बाप की हम्द करते खुदावंद और आसमानी बाप की क्या करते हैं? हम्द करते हैं। और इसी से आदमियों को और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा जो खुदा की सूरत शबीह पर पैदा हुए हैं बददुआ देते हैं। बददुआ देते हैं। यानी कि यही जुबान है कि यहाँ पर हम दुआ करते हैं, यहाँ पर कलाम सुनते हैं, यहाँ पर कलाम सुनाते हैं, और खुदा ना करे हो सके तो गली में जाकर, अपने घर में जाकर दूसरों से लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, गाली गलौज देना शुरू कर दें, लांत और बददुआएं देना शुरू कर दें। तो एक ही जुबान से दोनों चीजें किस तरह से निकल सकती हैं? एक ही जुबान से हम खुदावंद की सताइश करते हैं, एक ही जुबान से हम खुदावंद की हमद करते हैं, उसकी तमजीद या ताज़ीम करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, उसके सामने दुआ मांगते हैं, फिर उसी जुबान को हम अपनों के लिए गाली गलौज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लांत और बददुआओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये जुबानें कितनी हो गई? कितनी है जुबानें? ये तो फिर एक ना रही। एक जुबान शब्द रखिए खुदा वास्ते, तो एक रखिए अपने वास्ते। ले भी हूं गिरजा कर रहा हूं, आज तेरा बाहर निकला, ठीक है ना? हूं मैं गिरजे का बस लिखता पिया, मैं गिरजे जाना सी, वो हूं आ गया, हूं मैं तेन दस रहा नहीं चला हजरा। फिर दे गाली दे बातों में लांग का कैसा होना चाहिए? क्योंकि झूठ को खुदावन से। हाँ बेटा आगे पढ़े क्या लिखा है? आगे पढ़े। जो खुदा की सूरत पर पैदा खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं हैं, बददुआ देते हैं। बददुआ देते हैं, एक ही मुंह से मुबारकबाद एक मुंह से मुबारकबाद और बददुआ निकलती और बददुआ निकलती है। है। मेरे भाइयों, ऐ मेरे बस सुनिएगा, याकूब क्या कहता है? ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे कैसा होना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऐ मेरे भाइयों ऐसा ना होना चाहिए। ऐसा, देखो बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जुबान खुदा ने मुझे और आपको एक दी है, और किसके लिए दी है? अपने लिए, सच्चाई बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए नहीं, खुदा के लिए इस्तेमाल करने के लिए मुझे और आपको खुदा ने एक जुबान दे रखी है, ना कि इब्लीस की तरह झूठ बोलने के लिए। अगर हम झूठ बोलते हैं तो इसको याद रखें कि हम खुदा से नहीं, हम अपने बाप इब्लीस से हैं। जो झूठ बोलता है उसका बाप इब्लीस है, और जो सच बोलता है उसका बाप खुदा है। हालेलुया। क्योंकि खुदा सच्चा है और शैतान झूठा है। याकूब के साथ क्या कुछ ना हुआ, उसका सब कुछ तबाह बर्बाद हुआ कि ना हुआ। लेकिन जब अय्यूब की किताब उसका दूसरा बाब पढ़े तो वहां पर लिखा है इतना कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ तबाही बर्बादी होने के बावजूद भी उसके लबों से कोई किताब
ना हुई, उसने अपने लबों से कोई गलती, खता या झूठ ना बोला। और इसका रिजल्ट क्या निकला? अय्यूब की किताब मेरे साथ निकाले और बहनों में से आप कोई भी बहन पढ़ने में कोशिश कर सकते हैं। ज़बूर के पीछे अय्यूब की किताब है, आखिरी वाला जात मैं पढ़वाना चाहता हूँ। अय्यूब की किताब के फौरन पीछे जो है वो अय्यूब की किताब, ज़बूर के फौरन पीछे अय्यूब की किताब है और उसका आखिरी बाब है 42वां बाब। अय्यूब की किताब उसका 42वां बाब मेरे साथ निकाले। और जो पहले हमने ये सीखा कि जो झूठ बोलते हैं उनका नतीजा, उनका रिजल्ट क्या निकलता है। अब ये सीखने को जा रहे हैं कि जो हर हाल में, हर हाल या हर हालत में सच पर कायम रहते हैं उनको खुदा कितनी ब्लेसिंग्स अता करता है। हालेलुया। हाँ जी, जरा अय्यूब 42वां बाब मेरे साथ निकाले और उसकी 10वीं आयत को पढ़े। शाबाश, उसकी 13वीं और 14वीं आयत को पढ़े। अय्यूब 42वां बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत को पढ़े कि जब खुदा के सामने अपने लबों से, अपने मुंह से, अपनी जुबान से अय्यूब ने कोई भी खता ना की तो फिर उसका रिजल्ट कितना जबरदस्त तरीके से निकल गया। जी बेटा पढ़े 13वीं और 14वीं आयत को क्या लिखा है? उसके 7 बेटे। उसके कितने बेटे? 7। क्यों? क्योंकि उसके पहले 7 बेटे मर चुके थे और उसने सच पर कायम रहने की वजह से उन 7 बेटों को दोबारा से खुदा से हासिल कर लिया और खुदा ने उसके नए हुए 7 बेटों को फिर दोबारा पैदा किया। और वो मुफस्सिरीन बताते हैं कि ये जो अय्यूब के बच्चे मरे थे, 7 बेटे और 3 बेटियां, ये आसमान पर जिंदा थे। हालेलुया। और खुदा ने दोबारा से उसे फिर उसके सच्चेपन पर, उसकी जुबान पर कोई झूठ ना निकला, कोई झूठ ना आया और ना उसने झूठ बोलने में खता की, ना गलती की। और इसका नतीजा क्या निकला? खुदा ने दोबारा से उसको कितने बेटे दिए? 7 बेटे। 7 ही मरे और खुदा ने 7 दोबारा वापस कर दिए। आगे बेटा क्या लिखा है? और 3 बेटियां भी हुई, यानी कि 7 और 3 10। खुदा ने जितने बच्चे उसे खोए थे उसी तरह वापस कर दिए। ये सच बोलने का नतीजा है। हालेलुया। आगे बेटा क्या लिखा? 14वीं आयत में जरा पढ़ते तो क्या रकम है, क्या मरकूम है। शाबाश पढ़े। उसने पहली का नाम यमीमा और दूसरी का नाम कसिया रखा और दूसरी का नाम कसिया रखा और तीसरी का नाम करण और तीसरी का नाम करण हपूक रखा। शाबाश, थैंक यू। और उस सारी और उस वक्त उस सारी सरजमीन में ऐसी औरतें कहीं थी। क्यों बेटा? ऐसी औरतें यानी कि खुदा ने पहले से भी बढ़कर खूबसूरत बच्चे उसको अता कर दिए। हालेलुया। ये नतीजा है सच बोलने का। अगर हम सच पर मबनी रहेंगे, वक्ती तौर पर हम तबाह भी हो सकते हैं, खुदा ना करे। हमारे साथ कुछ बुरा सलूक भी हो सकता है, हमारे हालात बिगड़ भी सकते हैं सच बोलने की वजह से। और ऐसा होता भी है। सुनिएगा, सच बोलने से हमारे वक्ती तौर पे हालात बिगड़ भी सकते हैं, लेकिन बाद में खुदा फिर से बहाल करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। बशर्ते कि हम सच पर कायम रहें, हम झूठ पर कभी भी कायम ना रहें। अगर झूठ पर कायम रहेंगे तो सब कुछ लुट सकता है, सब कुछ बर्बाद हो सकता है, खानदानी तौर पे, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, दुनियावी तौर पे सब कुछ खुदा छीन सकता है। अगर सच बोलेंगे तो अय्यूब से सीखें। खुदा ने उसकी खोई हुई तमाम ब्लेसिंग उसे वापस कर दी। हालेलुया। हालेलुया। और उसे दुगनी खुदा ने बरकत दी क्योंकि वो सच पर कायम रहा। सोचिएगा, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, तो इसमें झूठ शामिल तो नहीं? क्या इसमें झूठ शामिल है? ये फर्ज करे पानी का गिलास है, ये देखिएगा, ये पानी का गिलास भरा हुआ है। जरा देखिए, ये पानी का गिलास, ये है सारा पानी, ये सारा पानी है। हम इसे पी सकते हैं क्या नहीं पी सकते हैं? अगर इसी पानी में एक कतरा, सिर्फ एक कतरा जहर का मिला दिया जाए तो क्या पिएंगे? या मैं पीऊंगा? यही हम कहते हैं चलो कोई गल नहीं, जितने 99 सच बोले ना, एक 100 जड़ा ना ये झूठ में छुपा लेना। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा
پھر یہ پانی اگر ایک قطرہ زہر کا بھی اس میں پڑ گیا تو یہ پینے کے لائق نہیں رہے گا۔ اگر آپ کوئی بھی بلیسنگز، کوئی بھی برکتیں، کوئی بھی خدمت، کوئی بھی نعمتیں، کوئی بھی بخشیں واپس لینا چاہتے ہیں تو آئیے اپنی زندگی سے، اپنی خدمت سے، اپنے گھرانے سے جھوٹ کو نکالیں، جھوٹ کو نکالیں۔ پہلے میں اپنی باتوں سے جھوٹ کو نکالوں گا، پہلے میں اپنی خدمت سے جھوٹ کو نکالوں گا۔ جب میں اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے جھوٹ کو نکالوں گا تو پھر میں دوسروں کو بھی سکھاؤں گا۔ اگر میں نہیں نکالوں گا تو میں دوسرے کو کیسے سکھا سکتا ہوں؟ لکھا کہ کیا اندھا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے؟ اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو کیا دونوں گھڑے میں نہ گریں گے؟ والدین کو چاہیے کہ جھوٹ کو چھوڑ دیں اور سچ کو اپنائیں۔ پھر بچوں سے بھی کہیں کہ جھوٹ کو چھوڑ دیں اور سچ کو اپنائیں۔ اگر ہم گھروں کی بحالی چاہتے ہیں، خاندانوں کی بحالی چاہتے ہیں، خدمت کی بحالی چاہتے ہیں تو ہمیں جھوٹ کو چھوڑنا ہے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، سبھی اپنی آنکھیں بند کریں۔